Hello my dear students, how are you all? Hope you are fit and fine and safe at your home. You are doing very well. I am very happy to see your good number of responses. So let us start our today's video. So let us start our video by revising our homework whatever given to the students in the previous video so that you can go through each mistake you have done or you can make a correction by your own. So let us take our first example. First, I have given you 7 notes of rupees 500, 10 notes of rupees 50 and 3 notes of rupees 10. 7 notes of rupees 500, that means 500 multiply with 7, what we will get? We get 3500 rupees. What we will get? 3500 rupees. 10 notes of 50 means rupees 500. Again 50 multiply 10, that is 500. Now 3 notes of rupees 10, that means rupees 30. All we get are the rupees, so it is easy to add all the rupees. When we will sum up 3500 with 500, what we will get? 4030, that is 4030. So in all amount is 4030 rupees. 5 coins of rupees 2, that means rupees 10. Here when we are having rupees na beta ji, so we will get the rupees, and if we are having the paise, we will get the paise. 3 coins of 20 paisa. 20 multiply 3, that is 60 paise, that is 60 paise. Here it is rupees, here it is paise. तो पैसे और रुपीस कभी भी एक साथ ऐड नहीं हो सकते. So we will get the amount 10 rupees 60 paisa. Now 8 notes of rupees 20. So 8 multiply with 20, what we will get? We will get rupees 160. Now 5 coins of rupees 5. 5 multiply 5 is rupees 25. 10 coins of 10 paise. So 10 multiply with 10, that is 100 paise. Now this is rupees, and here we get 100 paise. But we know that 100 paise is what? Equals to 1 rupee. Now we all get is rupees. Rupees 160 plus 25 is 185, plus rupees 1 is 186. So in all amount is 186 rupees. Now coming to the next, 10 coins of rupees 1. So we will get rupees 10 because here the coins are of rupees. Now 2 coins of 50 paisa. 50 multiply with 2 is equals to 100 paisa. Again we know that 100 paisa is what? 1 rupee. 4 coins of 25. तो 25 को जैसे ही हम 4 से मल्टीप्लाई करते हैं हमें मिलते हैं 100 पैसे, because these are coins of पैसे. तो we know that 100 paise is what? 1 rupee. Now in all we get what? Rupees. 10 plus 1 11, plus 1 12. So in all we get rupees 12. Now coming to the next, 3 notes of rupees 1000. 3 notes of rupees 1000 means 3000 rupees. How much? 3000 rupees. 6 notes of rupees 100. So that means rupees 600. Now 9 coins of rupees 1. 9 coins of rupees means 9 rupees, because here the coins are of rupees, so no need to change it into paisa or something else. We are having only the rupees, so it is easy for us to calculate. 3000 plus 600 is 3600, plus 9, that is 3609. So beta ji, in all I get 3609. Hope you have go through the each example whatever is given to you in the last video as your homework, and do the correction that are needed in your work. So let us continue our video with the new topic. Now my dear 4th class, we are going to find the cost or calculate the amount again. So here I have written few examples for you. Let us go through each example to find the cost or calculate the amount, so that it will be easier for us while going for a shopping or purchasing something from the market. So let us start with our first example. Cost of 7 packs of chips is rupees 42. What will be the cost of 1 pack? बेटा जी अब ध्यान दीजिएगा, आपको क्या दिया गया है कि 7 पैक ऑफ चिप्स कितने रुपए में आ रहे हैं? 42 में. What will be the cost of 1 pack?
यहाँ पे किसकी दी गई है 7 पैक की, कितनी 42 रुपीज़, और आपसे पूछी किसकी है 1 पैक की। ठीक है बेटा जी। अब देखिए आप एक चीज़ मुझे बताइए कि 7 इज़ बिगर और 1 इज़ बिगर। वी ऑल नो दैट 7 इज़ बिगर। जब हमें ज़्यादा की अमाउंट देके और कम की पूछी जाती है तो हमारा आंसर भी कम होगा या ज़्यादा। जैसे कि आप पैटीज़ खरीदने जाते हैं तो आपको कैंटीन वाले भैया क्या बोलते हैं, 1 पैटीज़ कॉस्ट 4 रुपीज़ 10। जैसे ही आप 2 पैटीज़ खरीदते हैं तो आपको पैसे ज़्यादा देने पड़ते हैं कम ज़्यादा। तो यानी कि ज़्यादा अगर अमाउंट है तो हमें पैसे भी क्या देने पड़ेंगे इसके लिए, मोर। ठीक है। और अगर हमारी अमाउंट, हमारी क्वांटिटी कम है तो हमारे पैसे भी क्या होंगे, लेस। क्या होंगे, लेस। तो यानी कि हमें पैसों को कम करना है। 7 की पता है, 1 की पता करनी है तो पैसे कम करने हैं। पैसे कम कैसे होते हैं बेटा जी, डिवाइड से होते, जब हम उनको टुकड़ों में तोड़ेंगे। ठीक है। तो 7 पैक कितनी है, कॉस्ट ऑफ 7 पैक्स is equals to rupees 42. For 1 pack we have to pay 42 divide with 7. We all know the table of 7, that is 6 7 6 42. So for 1 pack we have to pay 6 rupees. Now getting to the next example, Rajan pays 15 rupees for 1 पेन। उसने 15 रुपये किसके लिए पे किया बेटा जी, 1 पेन के लिए। हाउ मच ही हैज़ टू पे फॉर 5 सच पेन्स। अब उसको खरीदने कितने थे, 5। कितने खरीदने थे, 5। अब देखिएगा बेटा जी, अब वो 1 से कहाँ जा रहा है, 5 पे। 1 से कहाँ जा रहा है, 5 पे। 1 इज़ बिगर और 5 इज़ बिगर। 5 इज़ बिगर। जैसे ही हमारी क्वांटिटी बढ़ी तो हमारी अमाउंट भी क्या होगी, बढ़ जाएगी। हमारी अमाउंट भी क्या होगी, बढ़ेगी। ऐसा तो नहीं ना कि एक पैटीज अगर 10 रुपए की आ रही है तो 4 के लिए भी हमें 10 ही पे करने हैं, हमसे ज़्यादा लिए जाएंगे ना। तो अगर एक पेन 15 रुपए का आ रहा है तो 5 पेन के जानने के लिए हम क्या करेंगे, अमाउंट को बढ़ाएंगे। और अमाउंट कैसे बढ़ता है बेटा जी, हमेशा मल्टीप्लिकेशन से। कैसे बढ़ेगा, मल्टीप्लिकेशन से। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज इक्वल्स टू 15 रुपीज़। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स कितनी हो जाएगी बेटा, 15 मल्टीप्लाई विथ 5। You all know the table of 15. 15 5 is 75. So we have to pay how much rupees, 75 rupees. Now coming to the next example, Mr. Sharma saves rupees 100 in a day. Mr. Sharma ने कितने रुपए बचाए, हर दिन 100 रुपए बचाए। कितने रुपए बचाए बेटा जी, 100 रुपए। हाउ मच मनी ही विल सेव इन ए मंथ ऑफ जून। अब उससे पूछा गया है कि अगर वो एक दिन में, पर डे का, इन ए डे का मतलब तो एक ही दिन होता है ना। हाउ मच ही विल सेव इन ए मंथ ऑफ जून। आपको एक दिन की पूछ दे के और मंथ ऑफ जून की पूछी। अब आप सोचेंगे कि हमें दिन से मंथ की कैसे पता चलेगी। हमें पता है यहाँ किसकी बात हो रही है बेटा, डेज की, और यहाँ किसकी बात हो रही है, मंथ की। मंथ और डेज के बीच में एक रिलेशन होता है। जून का महीना, जून के महीने में कितने डेज होते हैं, वेरी नाइस, 30 डेज। तो यानी कि अब हमें क्वेश्चन समझ आ गया है कैसे करना है। कैसे करना है, एक दिन का दिया है और 30 डेज का पता करना। उसने हमसे 30 डेज को छुपा लिया और क्या दे दिया, मंथ ऑफ जून दे दिया। क्या दे दिया, मंथ ऑफ जून। यानी कि उसने हमसे छुपाने की कोशिश की थी लेकिन हमें पता लग गया। कैसे पता चला, क्योंकि हमने ऑलरेडी स्टडी किया है कि जून के महीने में कितने दिन होते हैं, 30 डेज। कितने डेज होते हैं, 30 डेज। सो वी कैन राइट ही सेव्स इन ए डे। एक दिन में कितने सेव करता है वो, ₹100। तो अब हमें बताना है इन ए मंथ ऑफ जून, दैट मीन्स 30 डेज में। 30 डेज में वो कितने सेव करेगा, 100 मल्टीप्लाई विथ 30। अब हमने यहाँ मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ एक दिन की बात हो रही थी और हमें कितने की बतानी है, 30। और ज़्यादा बताना है तो ज़्यादा अमाउंट, ज़्यादा का मतलब मल्टीप्लाई। तो व्हेन वी विल मल्टीप्लाई वी गेट ₹3000। तो वो एक महीने में कितने सेव करेगा, 3000। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल, इफ करण परचेज्ड 5 पेस्ट्रीज फॉर 65 रुपीज़। ओहो, पेस्ट्री तो सुनते ही सबका लॉकडाउन में मुंह में पानी आ जाता है ना। वेरी नाइस। 5 पेस्ट्रीज ₹4.65। हाउ मच ही हैड पेड फॉर 1 पेस्ट्री।
तो आपसे पूछा गया तो उसने एक पेस्ट्री के लिए कितने पैसे दिए होंगे। अगर वो 5 पेस्ट्री 65 रुपीज़ में ख़रीद रहा है तो 1 पेस्ट्री वो कितने में ख़रीदेगा। अब हमें किसकी दी गई है, 5 की अमाउंट किसकी दी गई है, 5 की, और पूछी किसकी गई है, 1 की। तो यानी कि हमें कम पे आना है, कम पे आना है तो अमाउंट डिक्रीज, एंड अमाउंट डिक्रीज का मतलब डिवाइड। वेरी नाइस। तो कॉस्ट ऑफ 5 पेस्ट्रीज इज ₹65। तो कॉस्ट ऑफ 1 पेस्ट्री कितनी हो जाएगी बेटा, we will divide 65 by 5. When we will divide by 65 by 5, 5 ones 5. When we will subtract, we get 1 and 5 down. Now 5 3s 15. 5 3s 15. So how much I have got, 13. So he had to pay ₹13 for 1 पेस्ट्री। हमने पहले वह देखिए, हम अब अपने सारे एग्जांपल्स को एक क्विक रिवीजन देते हैं। कैसे, 7 पैक ऑफ चिप्स 42, व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ 1 पैक। 7 से हम कहाँ पर आए बेटा जी, 1 पर। जब हम नीचे आ रहे हैं यानी कि हम डिक्रीज हो रहे हैं तो हमारी अमाउंट भी क्या होगी, डिक्रीज। एंड टू डिक्रीज द अमाउंट वी हैव टू डिवाइड। अब यहाँ राजन ने पे किए थे 15 रुपीज़ फॉर 1 पेन, एक पेन के लिए पे किए थे, 5 के लिए उससे पूछा गया। जैसे ही हमारी क्वांटिटी बढ़ी, क्वांटिटी का मतलब जो हम चीज़ खरीदने जा रहे हैं उसका नंबर बढ़ा, तो हमारी अमाउंट भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, और बढ़ेगी तब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। मिस्टर शर्मा ने एक दिन में 100 रुपीज़ सेव किए, आपसे मंथ ऑफ जून में पूछा, तो दिन का पूछा गया है तो हम दिन की ही बात करेंगे ना भाई, हम मंथ की क्यों बात करेंगे। हमें पता है एक मंथ में 30 या 31 डेज होते हैं, और अब हमारी 30 और 31 डेज की क्वेरी को क्लियर कौन करता है, ये वर्ड जून करता है। जून मीन्स 30 डेज। सो एक दिन का देखे हमसे कितने का पूछा गया, 30 डेज का, यानी कि 1 से 30 पे आने के लिए हमारी सेविंग्स भी बढ़ जाएगी ना। अगर हम एक दिन में 10 रुपये खर्च कर रहे हैं तो 2 दिन में कितने खर्च करेंगे, 20 रुपये। और ऐसे ही अगर हम बचाने पे आएंगे तो अगर जैसे जैसे हम दिन बढ़ेंगे तो हमारे पिगी बैंक में पैसे भी ज़्यादा हो जाएंगे, बचेंगे ज़्यादा। ठीक है। इफ़ current purchase 5 pastries for ₹65, how much he had paid for 1 pastry। 5 के लिए अगर वो 65 पे कर रहा है, 1 का जानना है तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो हमने जैसे ही डिवाइड किया, वी गेट द ₹13। सो ही हैड पेड ₹13 फॉर 1 पेस्ट्री। Hope you have understood how to calculate the cost or amount you have to pay. Thank you, students.